All right. Okay, guys, today we will discuss the most important topic of B.Ed, which is teaching and learning. This is first topic of your third paper. The name of the paper is teaching and learning, right? So first we will discuss about the teaching, then we will go for the learning. So guys, teaching क्या चीज है? Teaching basically teaching is it is an interactional process, right? There are some of the things in the teaching which makes the interaction. Basically there is a teacher, there is a learner, and the learning material which makes the teaching. It is an interactional thing, right? And the purpose of the teacher is to become aware या familiar with the learning material to the learner. Okay, teaching एक interactional process है. इंटरेक्शनल प्रोसेस के अंदर टीचर आ जाता है, लर्नर आ जाता है और लर्निंग मटेरियल आ जाता है. द मेन पर्पस ऑफ टीचर क्या होता है? उस लर्निंग मटेरियल को, जो सब्जेक्ट्स टीचर्स ने पढ़ाने हैं, किसी लर्नर को उसके साथ फैमिलियर करवाता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरेक्शनल प्रोसेस, राइट? B.O. स्मिथ की एक डेफिनेशन है गाइस. B.O. स्मिथ की, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज टीचिंग. टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग. स्मिथ ने क्या बोला है? कहता है टीचिंग जो है एक सेट ऑफ एक्शंस होते हैं, काफी सारे एक्शंस को मिला के, सिस्टम ऑफ एक्शंस, सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज, उन सबको मिला के टीचिंग बनती है. और टीचिंग का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है? लर्निंग, इंड्यूस लर्निंग. तो स्मिथ की डेफिनेशन से आपको यू हैव टू रिमेंबर, इफ देयर इज नो लर्निंग, that means there would be no teaching, right? whenever you are going to whenever you are whenever you are going to whenever you are going to teach, right? So that means the end result is learning. Actually there is a disturbance. Okay, please switch off your audio button. All of you switch off your audio button. It is creating the disturbance in the lecture. Yes. So guys, again what the Smith has said, that teaching is a system of actions intended to induce learning, right? When there, इसको simple word में आप समझो, when there would be a teaching, there would be a learning. Okay, अगर किसी टीचर ने कोई टॉपिक तैयार करवाया है, टॉपिक तैयार किया है उस टीचर ने, and next day he or she goes to the class and teach the topic, if the student is not learning, so that means there is no teaching. क्योंकि टीचिंग का मतलब ही यही होता है, टीचिंग मींस इंड्यूस लर्निंग, राइट? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग का नेचर क्या है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट स्टेप ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. इट इज एन इंटरेक्शनल प्रोसेस which I have just explained. It is a interactions of teacher, student and the learning material, right? And the purpose of a teacher, उस learning material को student के साथ familiar करवाना. This is called interactional process. The second point is, nature or characteristics of teaching is matter of drawing out. Always remember, हमेशा आपको ये याद रखना है, whenever I ask from all of you, guys tell me what do you mean by teaching, तो आपका your answer should be, if I ask in a one line, you have to tell the meaning of teaching. You have to say, sir, matter of drawing out, right beta? Always remember, teaching means not teach to the student. Even teaching means you have to draw out from the mind of the student. This is called teaching. Matter of drawing out, you have to draw out of the best, right beta? Teaching does not mean कि you have prepared a one topic and you go to the class and you teach over there. You are pouring into the mind of a student. Instead of pouring into the mind of the student, the nature of teaching is, या characteristics of teaching is to draw out of the best. तो टीचिंग का मतलब निकालना होता है. टीचिंग का मतलब डालना. कोई नॉलेज किसी बच्चे के माइंड में डालनी नहीं होती है. मीन्स यू हैव टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट सो दैट उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर निकल के आए. दिस इज कॉल्ड टीचिंग, राइट? थर्ड पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, causing to learn. What is teaching? Teaching means causing to learn, which makes the person
कॉजिंग टू लर्न, कि वो पर्टिकुलर चीज को याद करे। आपकी टीचिंग इस वे में होनी चाहिए, राइट, कि बच्चा उसको वो याद करे, वो टॉपिक उसको स्टिम्युलेट करे और वो अपने आप उन चीजों को जाके याद करे। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। आप सभी का, जब आप छोटे थे, 5th 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, तो आपका फेवरेट एक टॉपिक होता होगा, राइट। जब आप स्कूल से फटाफट आते थे बच्चे भाग के, तो आप पर्टिकुलर किसी ना किसी टॉपिक को, फेवरेट को आप याद करते थे। यानी कि किसी का साइंस हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक था और ऑलवेज आप उसमें मार्क्स अच्छे लेते थे, है ना। आपको सभी को याद होगा, मेरा भी था। लेकिन द मेन थिंग इज दैट हमारा टॉपिक फेवरेट नहीं होता, हमारा वो टीचर फेवरेट होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टीचर ने उस टॉपिक को फेवरेट बनाया, राइट। उसने हमें कॉज किया कि उस चीज को हम जाके लर्न करें। तभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये बोलता होता हूं कि बच्चा कभी भी नालायक नहीं होता। इट इज वो जिस टाइप की उसने टीचिंग ली होती है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की उसने टीचिंग ली है और उसका नरिशमेंट हुआ है, राइट। तो टीचिंग मीन्स कॉजिंग टू लर्न आल्सो। नेक्स्ट है ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, राइट। अर्लियर इसको बाइपोलर प्रोसेस कहा जाता था। बाइपोलर मींस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, राइट। लेकिन नाउ इट इज ए ट्राइपोलर। ट्राइपोलर मींस देयर आर थ्री थिंग्स इन द टीचर, इन दिस प्रोसेस: टीचर, लर्नर एंड द लर्निंग मटेरियल, राइट। तो जैसे इंटरेक्शनल प्रोसेस में हमने डिस्कस किया, तो ये सेम पॉइंट वही आ जाएगा, ट्राइपोलर प्रोसेस है। नेक्स्ट है टीचिंग इज ए वेल प्लान्ड एक्टिविटी। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, टीचिंग इज नॉट ए, राइट, आपने कहीं से भी कोई चीज उठाया एंड यू स्टार्ट टीचिंग। टीचिंग एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी है, टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। whenever you go into the class, आप 30 मिनट अगर लेक्चर दे रहे हैं क्लास के अंदर, 30 मिनट्स आप पढ़ा रहे हैं, तो उस 30 मिनट्स के अंदर भी कम से कम आपके 15 या 20 स्किल्स यूज हो रहे हैं। यू आर यूजिंग 15 और 20 स्किल्स इन द क्लास, ओके। हमेशा इवन यू एंटर इन द क्लास, यू announce your topic. Do you know there is a skill of announcing the topic? There is a skill of explanation, how you have to explain. There is a skill of stimulus variation. So there are a lot of skills in the teaching process. It does not mean आपने कोई भी टॉपिक को पढ़ा और अगले दिन जाके पढ़ा दिया and you think yourself कि you have given a very good teaching to the student. ये आपका सारा misconceptions है, okay? ये एक well planned activity है। Unless or until you don't understand all the steps of the teaching, जो आप आगे अपना करेंगे, तब तक आपकी टीचिंग एक बेटर इफेक्टिव नहीं हो सकती, राइट गाइस। तो टीचिंग एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी भी है। टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग एक आर्ट भी है। एक एजुकेशनिस्ट ने बोला था कि टीचर एक आर्टिस्ट होता है जो अपने स्टूडियो के अंदर, राइट, किसी भी रॉ मटेरियल को उसको नरिश करता है। तो बीइंग ऑफ ए टीचर, आपका स्टूडियो स्कूल है, स्कूल के अंदर या क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर रॉ मटेरियल बच्चे हैं, आपने उनको रिफाइन करना है, राइट। दैट्स व्हाई टीचर इज कॉल्ड एन आर्टिस्ट। टीचिंग इज ए साइंस, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। साइंस मींस इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टमैटिक एक्टिविटीज। क्योंकि अभी बी ओ स्मिथ की भी यू हैव डन द डेफिनेशन। स्मिथ ने क्या बोला है? टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस दैट इंड्यूस लर्निंग। मतलब टीचिंग एक काफी सारे एक्शंस को, एक्टिविटीज को मिलाकर बनती है, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लर्निंग, राइट गाइस। तो टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। टीचिंग इज ए कोऑपरेटिव। यू हैव टू कोऑपरेट टू द स्टूडेंट। ये नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया, बाद में आपने उनको कुछ भी, इफ स्टूडेंट राइज एनी ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट गिविंग द सोल्यूशन, तो बेटा यू हैव टू गिव द सॉल्यूशंस। इट इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। देखो, जब वेन एवर यू गो इनटू द क्लास, सब्जेक्ट मैटर के साथ बच्चे ने बाद में इंटरेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ इंटरेक्ट करता है बच्चा, राइट। यू गो इनटू द क्लास और आप बच्चे को बोलते हो, ओके बेटा तेरा नाम क्या है, तो उस बच्चे को यही होगा कि मैडम ने मुझे तू या तेरा कह के बुलाया, राइट। तो वो सारी पूरा साल आपसे लर्न ही नहीं कर पाएगा।
आपने उसको, यू हैव टू गिव, आप उसको एक डिग्निटी, एक उसको रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव टू द स्टूडेंट. यू हैव टू टेक द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कोऑपरेटिवली, सजेस्टिवली उसको आपको गाइड करना है, राइट? तो कोऑपरेटिव और सजेस्टिव भी पॉइंट आपका हो गया. टीचिंग इज ए रेमेडियल प्रोसेस, right? Why it is called a remedial process? Because when you give a lecture in the class, class क्या चीज होती है? Class it is a miniature of society. Means class के अंदर एवरेज बच्चा भी बैठा है, इंटेलिजेंट भी बैठा है, और बिलो एवरेज भी बैठा है. समटाइम्स बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको उस कंसेप्ट की रेमेडी देनी है कि गाइस फ्रॉम दैट वे यू कैन लर्न दैट सब्जेक्ट. ओके, इट डज नॉट मीन कि आपने टॉपिक कल याद किया, आज उसको डिलीवर कर दिया, और अगले दिन सोचते हैं अब देयर इज नो नीड टू डिलीवर, राइट? आपका काम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो टॉपिक बच्चे को अच्छे से ना आ जाए. तो इफ यू फाइंड दैट उसको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसको रेमेडी भी प्रोवाइड करनी है. टीचिंग इन्वॉल्व स्किल इन गाइडिंग लर्निंग. तो टीचिंग का मतलब क्या होता है? उसको गाइड भी करना पर्टिकुलर लर्निंग के लिए. इट इज ए बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस. फॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? बिटवीन द फोर वॉल्स, व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम, दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मल प्रोसेस, राइट? और कभी बच्चे को शाम के टाइम फोन आ गया या कुछ आ गया, कभी छुट्टी वाले दिन बच्चा पूछ रहा है, तो आप उसको यू आर गिविंग द नॉलेज, दिस इज कॉल्ड ए इनफॉर्मल प्रोसेस, राइट? तो फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस भी है. सो आई होप you know these, some of the points of a nature and characteristics of the teaching. Being of a teacher, you all are going to become a teacher, you should know these subjects. Okay, next हम करते हैं what are the phases of teaching या stages of teaching क्या होती हैं. तो guys always remember there are 3 stage of teaching. 3 ही फेस होते हैं या 3 ही स्टेजेस होती हैं टीचिंग की. कौन कौन सी होती हैं? प्री एक्टिव स्टेज, इंटरेक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज. इन तीनों को आपने समझना है. इनफैक्ट इस टॉपिक से यू हैव कम टू नो दैट कि टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस भी होती है, राइट? जो हमने अभी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में किया. और जो स्मिथ ने बोला था टीचिंग इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज, वो भी इस टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे टीचिंग इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज है, राइट? जो प्रोड्यूस करती है लर्निंग. तो अब आप इसको समझिए. 3 फेस होते हैं टीचिंग के. वन इज कॉल्ड प्री एक्टिव फेस, सेकंड इज इंटरेक्टिव, और थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेस. प्री एक्टिव फेस कौन सा होता है? प्री एक्टिव फेस होता है बेटा प्लानिंग का. ओके, मतलब सपोज आफ्टर 2 days 3 days या नेक्स्ट डे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है बच्चे को, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्लान करते हो, राइट? अपने माइंड में प्लान करते हो या रिटर्न में प्लान आप करते हो कि मैंने कैसे डिलीवर करना है इस टॉपिक को, राइट? तो जो फर्स्ट फेस है प्री एक्टिव फेस, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग फेस. तो प्लानिंग फेस में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करो. प्लानिंग के अंदर सबसे पहले टू नो यूर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स हैं. आपको वो 25-30 बच्चे को आपको टॉपिक पढ़ाना है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर कि हर बच्चे का क्या क्या लेवल है, राइट? सम आर इंटेलिजेंट, सम आर एवरेज, सम आर बिलो एवरेज. तो आपको जो टॉपिक प्रिपेयर करना है, एक एवरेज टॉपिक प्रिपेयर करना है, सो दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी उसको ग्रास्प कर सके अच्छे से, और बिलो एवरेज जो बच्चे हैं वो भी उसको ग्रास्प कर सके. ये प्लानिंग के अंदर आता है. सेकंड क्या चीज आती है प्लानिंग के अंदर? कि वट एवर द टॉपिक यू आर गोइंग टू टीच, आपने उस टॉपिक को सिंपल बनाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपने उसको समझाना है. जस्ट अभी मैंने एक आपको टॉपिक करवा रहा था, एक स्टेप करवा रहा था, जिसमें मैंने आपकी एग्जाम्पल ली कि एक फेवरेट सब्जेक्ट होता था आपका. बेसिकली सब्जेक्ट फेवरेट नहीं था, वो टीचर फेवरेट था जिसने उस सब्जेक्ट को फेवरेट बनाया. तो यू हैव टू इन्वॉल्व सिंपल एग्जाम्पल्स और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स इन यूर टीचिंग. मतलब टीचिंग को एक मोनोटोनियस प्रोसेस ना बना दो, राइट? एक डेली रूटीन वाली और एक ऐसी प्रोसेस ना बना दो. उसको आप एग्जाम्पल्स के साथ समझाओगे तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव भी हो जाएगी. तो ये पार्ट भी प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है सारा. तो ये सारा का सारा आपने प्लान कर लिया, दिस इज कॉल्ड ए प्री एक्टिव स्टेज. अब बेटा जो सेकंड स्टेज आती है, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन, मतलब इंटरएक्टिव स्टेज.
इंटरैक्टिव स्टेज का मतलब हो गया यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। ओके, अब बच्चे आपके सामने हैं, यू हैव एंटर्ड इन द क्लास, नाउ यू आर गोइंग टू टीच दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव स्टेज। तो इंटरेक्टिव स्टेज में आपके सभी के सभी बच्चों के साथ यू हैव टू मेक योर आई कॉन्टैक्ट। ओके, यू हैव टू नो दैट कि भाई स्टूडेंट्स समझ के ऐसे ही हाँ जी किए जा रहे हैं, तो आपने उनसे यू हैव टू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चन आल्सो इन ऑर्डर टू मेक देम अवेयर। कई बच्चे होते हैं ना, उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है और आपके सामने यस किए जा रहे होते हैं ऐसे ऐसे, यानी कि राइट। तो you should have knowledge because you have done the psychology, you have done the philosophy। अब आपको पता लग जाना चाहिए किस बच्चे का इंटरेस्ट ले रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो इन ऑर्डर टू उसको अवेयर करने के लिए यू हैव टू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस, ताकि वो अवेयर होकर क्लास के अंदर आ जाए। तो इंटरेक्टिव स्टेज का मतलब ये हो गया, नाउ द स्टूडेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर टीचिंग टू द स्टूडेंट with the help of examples, you are interacting with them, right? This is a interactive। अब जो थर्ड फेज है पोस्ट एक्टिव, नेवर मिस दिस स्टेप। पोस्ट एक्टिव फेज जो होता है, दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन फेज। याद रखना, जो टीचर की टीचिंग है अगर वो इवेल्युएट ही नहीं होती तो उसको टीचिंग कभी भी नहीं कहा जाता है। तो आपने अपनी टीचिंग को इवेल्युएट भी करना है। हाउ यू इवेल्युएट? बाय टेकिंग अ टेस्ट, यस, या बाय आस्किंग द ओरल क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अगर क्लास में बच्चे रिस्पोंड कर रहे हैं, देन यू कम टू नो दैट आपकी जो टीचिंग एक सक्सेसफुल हो गई है। आप एक रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं बच्चों से, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी ले सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी ले सकते हैं, इन ऑर्डर टू नो दैट वेदर योर टीचिंग वाज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। तो ऑलवेज रिमेंबर these three phases of teaching, these three stages of teaching: pre-active stage, interactive and post-active, right guys? Next we discuss about the principles of teaching। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के, वो आपको बीइंग ऑफ ए टीचर यू शुड नो दैट। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। जनरल प्रिंसिपल तो यू आर अवेयर, एक डेफिनेट एम होता है कि इस टॉपिक्स को मुझे कवर अप करवाना है, राइट? उस प्लानिंग उसकी होनी चाहिए, बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, आपको टॉपिक पीपल सेंटर्डनेस रखना है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए क्लास के अंदर, प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल। तो ये सभी टीचर फॉलो करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। यू शुड नो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, राइट? और ये आपको तभी आते हैं जब आप बीएड जैसा कोई कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, जब आप उसके अंडरगो, आप उसको अच्छे से करते हैं, तब जाकर आपको ये चीजें आती हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन से हो गए? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन, यू हैव डन दैट, राइट? सैमुअल सर हैज आल्सो गिवन द एग्जांपल। नाउ यू आर लर्निंग बिकॉज यू नो दैट नेक्स्ट मंथ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर एग्जाम। तो उस चीज ने आपको मोटिवेशंस दी है, तभी आप पढ़ रहे हो। इवन मैंने एक आपको थियरी करवाई थी, ट्रायल एंड एरर थियरी, राइट? वो जो कैट थी जो बॉक्स के अंदर बंद थी, उस कैट को किस चीज ने मोटिवेट किया बाहर आने के लिए? क्या था? वो फिश थी, राइट? थॉर्नडाइक ने फिश प्लेस किया उस पजल बॉक्स के बाहर, तो जो कैट थी, अब कैट को फिश की स्मेल ने मोटिवेट किया, राइट, टू कम आउट ऑफ द केज। तो ही शी स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द केज। अल्टीमेटली उसका जो पा होता है, पंजा होता है, एक लीवर पे प्रेस हो जाता है और वो बॉक्स खुल जाता है, कैट बाहर आती है और अपना रिवॉर्ड ले जाती है। तो आप वेन एवर यू आर गोइंग टू टीच इन द क्लास, मोटिवेशन जरूर आपको क्रिएट करनी है। आप उनको मोटिवेट, कोई बच्चे ओके, इफ यू गिव द राइट आंसर आई विल गिव यू द पेन, आई विल गिव यू द कॉपी, आई विल गिव यू द टॉफी। इवन व्हेन यू आर स्माइलिंग इन द क्लास, इट इज आल्सो ए जेस्चर ऑफ मोटिवेशन, राइट? आप बच्चे का आंसर्स को आप स्माइल वे में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। तो आपने अपनी टीचिंग के अंदर मोटिवेशन को जरूर लेके आना है, जिससे बच्चे की लर्निंग पावर अराउज हो जाती है, राइट? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ए सिंपैथी एंड काइंडनेस। टीचिंग, याद रखना, ऑलवेज सिंथेटिक प्रोसेस है, राइट? कोई ये हार्श या हार्ड वाली प्रोसेस नहीं है। आपको बच्चों के साथ चलना पड़ता है,
बच्चों के लेवल पे आके उनको आपको समझाना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ ए कॉपरेशन, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कॉपरेटिव प्रोसेस है, सजेस्टिव प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ ए रिक्रिएशन, यस, आपने अपनी टीचिंग को कुछ थोड़ा एंटरटेनिंग होनी चाहिए, यानी कि न्यू एक्टिविटीज आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए टीचिंग में। ऑल ऑफ द टाइम सडन ये नहीं है वही हो, सम टाइम यू कैन टीच विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। समटाइम्स आपने कोई चीज बच्चों को दिखानी है तो बच्चों को पर्टिकुलर उस प्लेस पे लेके आप जा सकते हो, टूर एंड ट्रेवल के थ्रू आप अपनी टीचिंग उनको बता सकते हो। तो देयर शुड बी ए रिक्रिएशन प्रोसेस टीचिंग के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ ए रेडीनेस, this is the duty of the teacher to ready the student to learn that particular things। तो आपके अंदर इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, आपको फिलॉसफी आनी चाहिए, सो दैट आप अपनी नॉलेज से बच्चे को रेडी कर दो ताकि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो रेडीनेस, दिस इज ए आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ए टीचिंग, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट रेडी, अगर स्टूडेंट रेडी नहीं है तो वो पढ़ेगा कहां से। तो उसको रेडीनेस भी आप ही ने करना है अपने टीचिंग स्किल्स की बदौलत, राइट। प्रिंसिपल ऑफ ए प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स वाला पॉइंट है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस। अब आपको यू हैव टू कीप इन द माइंड कि ये प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, टीचिंग का ये सिद्धांत भी है कि भाई आपने यू हैव टू गिव ट्रेनिंग टू द सेंसेस। याद रखना गाइस, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज, किसने कहा था, हमने प्रैग्मेटिज्म में किया था ना। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज, गेटवे ऑफ द लर्निंग। तो जो सेंसेस हैं बच्चों की, जो फाइव सेंसेस होती हैं, ठीक है, सेंस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, राइट, देखना, स्पर्श करना, ये जो पांच सेंसेस है आपने इनको ट्रेन करना है, राइट, उन बच्चों का, सो दैट, यानी कि आईज जो है, देखने की सेंस है, आप हमेशा थ्योरेटिकल नहीं, आप विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो उनकी वो पर्टिकुलर सेंस भी ट्रेन हो रही है, राइट। तो आपने उनकी, और कभी उनसे आपने वर्क टेस्ट ले लिया, कभी कोई एक्टिविटी करवा दी अपनी टीचिंग्स के अंदर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द टीचिंग, टीचिंग डज नॉट मीन कि आपने क्लास में खड़े होकर टॉपिक पढ़ाना है, राइट। ये तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, कभी आप उनकी डिबेट भी करवा सकते हैं, राइट। दो बच्चे हैं अपनी क्लास के अंदर, बच्चों को डिवाइड कर दो, एक को आप बोलो ओके यू हैव टू स्पीक ऑन आइडियलिज्म, सेकंड ने यू हैव टू स्पीक ऑन प्रेगमेटिज्म, या किसी ने अपोज करना है, किसी ने फेवर करना है, किसी ने ये करना है। तो फ्रॉम दैट वे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू भी आप उनको टीच करवा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, राइट। सो आपने यू हैव टू प्रोवाइड द सेंसेस, प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द सेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्रिंसिपल ऑफ ए इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, राइट। इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग का अभी आपने किया था नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में, कि टीचिंग क्या चीज है। टीचिंग मींस कॉजिंग टू लर्न, टीचिंग मींस मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, राइट। तो ये इनकरेज करना, याद रखना बच्चे, मैं आपको बताऊं, जो टीचिंग है, टीचर कौन होता है, उसको इनकरेज करने वाला होता है। आपने अगर इनकरेज नहीं किया बच्चे को, आप उसका सम टाइम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी, साउथ अफ्रीका के अंदर एक जो रिसर्च हुई थी, राइट। उसमें जो बच्चे थे वो बहुत ही कंडीशंस वहां पे बड़ी पैथेटिक सी कंडीशंस थी, राइट, वो सर्वाइव ही नहीं करते थे बच्चे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 20 ईयर जब एक टीम वहां पर पहुंचती है तो व्हाट हैपेंस, कि उसी स्कूल के बच्चे दुनिया के सबसे अमीर बंदे बन गए थे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 7th क्लास में हमें टीचर बहुत बढ़िया मिल गया था। तो दैट मीन्स इनकरेज करने वाला मिल गया था। ऑल दो गाइज, आपको मास्टरी नहीं है पूरे सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर इनकरेज करने वाली भावना है। टीचिंग का मतलब भावना होता है, याद रखना। आप उनको इनकरेज कर रहे हो, आप उनको हमेशा अपने स्टूडेंट ही नहीं, आप चाहते हो कि वो मेरे से भी आगे जाएं। अगर इस कंसेप्ट को लेके आप पढ़ा रहे हो, दिस इज कॉल्ड इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। वो उनकी सेल्फ लर्निंग को इनकरेज करती है, राइट। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चांस देना चाहिए। सम टाइम आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो कोई टॉपिक आप बच्चे को भी दे सकते हो, ओके बेटा आपको अब ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, एंड यू ऑन दैट केस यू हैव टू बिकम द स्टूडेंट, राइट, इन ऑर्डर टू डेवलप द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट, in order to develop the creativity of the student,
राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रुप डायनामिक्स। तो ये बेटा रिसर्च हो चुकी है कि ग्रुप लर्निंग के अंदर, ग्रुप के अंदर बच्चे जो हैं वो अच्छे से लर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ वन टू वन टीचिंग। आप एक या दो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं इंस्टेड ऑफ ग्रुप के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा आप क्या करो, जो ग्रुप लर्निंग है इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, ग्रुप लर्निंग के अंदर पढ़ाओ, ग्रुप लर्निंग में आप उनके टेस्ट वगैरह ये सब चीजें कंडक्ट करो, राइट। लास्ट पॉइंट इज ए प्रिंसिपल ऑफ ए फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, राइट। उनकी उनसे फीडबैक उनकी लेनी है, उसके ऊपर वर्क करना है, फिर आपने उसकी फीडबैक के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना है। और री इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि बच्चे का लर्निंग का लेवल कहीं नीचे तो नहीं जा रहा, राइट। अगर उसका लर्निंग का लेवल नीचे तक जा रहा है, फिर आपने कोई ना कोई और मेथड से, एक्टिविटी से उसका लर्निंग का लेवल फिर बढ़ा देना है, क्योंकि लर्निंग का लेवल हमेशा वेरिएट करता रहता है, राइट। तो इट इज ए नॉट ए वन डे टाइम, द सन इज नॉट न्यू एवरी डे, राइट। तो आपने हमेशा उसको अपनी टीचिंग को बेस्ट बनाते रहना है, ताकि आपकी लर्निंग बेस्ट, यानी कि आपके बच्चों की लर्निंग बेस्ट होती रहे, राइट। तभी देयर आर लॉट ऑफ ए टीचर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसके अंदर टीचर्स की इंग्लिश इंप्रूव करवाई जाती है, टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, टीचर को जो माइंड का लेवल है उसको इन्हांस करवाया जाता है, ब्रॉड करवा मतलब उसका लेवल बढ़ाया जाता है, उसका दायरा बढ़ाया जाता है, उसको कई टेक्निक्स करवाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे जो टीचर होता है उसकी अच्छे से प्रॉपर वे में उसकी नरिशमेंट होती है। अगर उसकी प्रॉपर वे में नरिशमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बच्चों की लर्निंग है वो भी बेस्ट होती है, राइट गाइस। तो इट वाज लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ए फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द जनरल प्रिंसिपल्स, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, राइट। ये लास्ट टॉपिक है इसका, टीचिंग एंड लर्निंग का। तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स क्या, टीचिंग टॉपिक का मैक्सिम्स क्या चीज होती हैं? कुछ बेटा क्या है, कुछ ना यूनिवर्सली फैक्ट्स हैं, एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं ये यूनिवर्सली। मतलब ऐसा नहीं इंडिया अमेरिका सभी जगह के ऊपर, नॉट इन इंडिया, मतलब पूरे यूनिवर्स में कुछ फैक्ट्स हैं वो एक्सेप्टेड हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। और उन वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिम्स, राइट। यानी कि टीचिंग को लेके, टीचिंग को लेके हर पर्सन की अलग अलग राय होती हैं, लेकिन पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द यूनिवर्स, कुछ एक फैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, सभी लोगों ने बोला है हाँ इसी को टीचिंग बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ मैक्सिम्स हैं जो टीचर को एक रोड मैप की तरह हैं, जो टीचर उसको जब फॉलो करता है तो उसकी टीचिंग बेस्ट हो जाती है। और टीचर ने, हाउ द टीचर हैज टू प्रोसीड, उसने आगे कैसे जाना है अपने टॉपिक्स को लेके। तो ये मैक्सिम्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कुछ चीजें हैं, फैक्ट्स हैं जो टीचर को हेल्प करती हैं, राइट। तो हम वी डिस्कस अबाउट दीज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। समटाइम ये क्वेश्चंस आ जाता होता है 10 मार्क्स के अंदर ही, राइट, टीचिंग के साथ कंबाइंड होके आ जाता है। तो फर्स्ट सबसे पहला क्या है, टीचिंग क्या चीज होती है? प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका मीनिंग है कि वेन एवर यू हैव टू टीच इन द क्लास, तो गाइज आपने एक नोन चीजों से स्टार्ट करते हुए बच्चे को अननोन फैक्ट की तरफ ले जाओ, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसी चीज ना करवा दो जो उन्होंने देखी नहीं हुई है, राइट। यानी कि पहले जो चीजें उन्होंने देखी हैं उनको वो जानते हैं, मतलब डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आप उठाओ, क्योंकि डेली लाइफ एग्जाम्पल्स सभी बच्चों को मालूम होती हैं। और फिर उस नोन कंसेप्ट से, नोन थिंग से उनको अननोन की तरफ ले जाओ, मतलब जो आपका टॉपिक है, राइट। जो भी आपका टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो उसको पढ़ाने में आपके दिमाग में पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि मैंने बच्चों को पहले नोन चीजों के बारे में बताना है, जिसके बारे में बच्चे अच्छे से जानते हैं, राइट। फिर आपने अननोन चीज की तरफ लेके जाना है उनको, जो आपका टॉपिक है, राइट। सेकंड आ गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचिंग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जानी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि क्लास में आकर आपने जो आपका टॉपिक था, जो उसमें जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको पहले आपने बता दिया, राइट, और बाद में उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया।
तो इट वुड बी मोर बेटर कि पहले उसकी सिंपल चीजें बता दी, उसके सिंपल फॉर्मेशंस बता दी। तो जब आप सिंपल चीजें बच्चों को करवाओगे तो बच्चों के दिमाग में उनका जो स्कीमा होता है, दिमाग के अंदर स्कीमा क्या होता है वो मैं आगे बताता हूं, राइट। तो उसके अंदर उन चीजों को वो ग्रास्प कर लेते हैं। फिर जब आप जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो बच्चे का भी माइंड उस कॉम्प्लेक्स चीजों को गेन करना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखना, आपका चाहे टॉपिक सिंपल है चाहे डिफिकल्ट है, आपने हमेशा टॉपिक को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ और नॉन से अननोन चीजों की तरफ लेके जाना है। थर्ड आ गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड थिंग्स, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेटिव, राइट, जिसको आप छू नहीं सकते, यू कैन नॉट टच। तो बच्चों की टीचिंग का जो आपका जब आपने पढ़ाना है तो उनको कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होनी चाहिए। हर्बर्ट हुए हैं, हर्बर्ट एक बहुत एजुकेशनिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, जिन्होंने लेसन प्लान के भी स्टेप्स दिए हैं। तो हर्बर्ट की एक डेफिनेशन है, कहते हैं टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द कंक्रीट एंड एंड इन द एब्स्ट्रैक्ट। राइट बेटा। नेक्स्ट आ गया पर्टिकुलर टू जर्नल। आपकी जो टीचिंग है, जो भी आप टॉपिक है विच यू आर गोइंग टू टीच इन द क्लास, इट शुड गो फॉर पर्टिकुलर टू जनरल, राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिलोसफी कर ली और साइकोलॉजी कर ली है, राइट। तो आपको लिटिल बिट सम टाइम कई बच्चों को साइकोलॉजी थोड़ी इजी लगती है एज कंपेयर टू फिलोसफी। क्यों इजी लगती है? क्योंकि साइकोलॉजी ऑलवेज टॉक अबाउट पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर अलग अलग बच्चों की बात करती है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करती है, राइट। और जो फिलोसफी है उसके अंदर तो थ्योरी है सारी, तो वो एक जनरल चीजों की बात करती है कि आइडियलिज्म ने ये बोला है, इसी को आप अडॉप्ट करते हो, इसी पे आप चलते हो तो आइडियलिज्म है। प्रैग्मेटिज्म ने ये बोला है, इसी पे आप चलते हो तो ये प्रैग्मेटिज्म है। यही प्रैग्मेटिज्म के एम्स ऑफ एजुकेशन है, करिकुलम है, मेथड ऑफ टीचिंग है। तो आपकी टीचिंग पर्टिकुलर टू जनरल जानी चाहिए। नेक्स्ट आ गया इंपीरिकल टू रैशनल। इंपीरिकल का मतलब होता है जो दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी कि जिस चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिन चीजों को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो आपकी जो टीचिंग है प्रैक्टिकल चीजों से रैशनल की तरफ जानी चाहिए। रैशनल क्या चीज होती है? रैशनल होता है कि किसी भी कंसेप्ट को अब हम लोग आर्ग्यू करके या डिस्कस करके जो कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, दिस इज कॉल्ड रैशनल कंसेप्ट। और इंपीरिकल कंसेप्ट क्या होता है? इंपीरिकल कंसेप्ट बेस्ड होता है मेथड के ऊपर, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर, जिसको पर्टिकुलर वे में प्रूव किया जाता है सिस्टमेटिक स्टेप से। तो आपकी टीचिंग जो है इंपीरिकल टू रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगला पॉइंट आ गया साइकोलॉजिकल टू लॉजिक। तो आप बच्चों का जब भी पढ़ाना है साइकोलॉजी को देख के, कि सारी क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी उनका लर्निंग पैटर्न है, डिफरेंट उनके इंटरेस्ट है, डिफरेंट उनका नॉलेज है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से वो आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं उनके। तो साइकोलॉजिकल वे से फिर आप लॉजिकल वे की तरफ आप लेके जा सकते हैं। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन भी वही होता है कि एक्चुअल चीजें पहले उनको दिखाओ, फिर रिप्रेजेंटेटिव चीजें जो होती हैं उसकी तरफ लेके जाओ, राइट। इसकी एग्जांपल जैसे सपोज छोटे बच्चों की एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपने उनको एलिफेंट, आपने उनको लॉयन, आपने उनको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताना है। तो इट वुड बी बेटर कि वो बच्चों को एक बार जू विजिट करवा दो, राइट। वो जू में एक्चुअल चीजें देख लेंगे। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया थ्रू ग्राफ, थ्रू मॉडल आप उनको समझा सकते हैं। तो आपकी भी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू थिंक दैट कि भाई ये टॉपिक, इट वुड बी मोर बेटर कि मैं इसकी इनको एक्चुअल सिचुएशंस पे ही ले जाऊं। तो एक्चुअल सिचुएशंस पे ले जाकर जो उनकी लर्निंग डेवलप होती है वो बेटर डेवलप होगी, इंस्टेड ऑफ आप क्लासरूम में ही सिर्फ मॉडल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू आप उनको समझाते हैं। तो राइट, डेफिनेट टू इनडेफिनेट ये हो ही गया, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ गया होल टू पार्ट। आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी इन पार्ट में पढ़ा, ऐसा नहीं है। आप उनको पहले होल के बारे में भी बताओ, ठीक है, फिर उनको पार्ट में आप लेके जाओ, राइट। होल टू पार्ट मीन्स जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था सारा कि इंटेलिजेंस की कितनी थियोरी हैं, स्पीयरमैन की थियोरी है, स्पीयरमैन दो बातें करता है, जी फैक्टर एस फैक्टर की, राइट। फिर उसके बाद थर्स्टन ये करता है, फिर ये करता है। तो पहले होल बता दिया, जैसे सिलेबस आपको बता दिया कि अगर आप
पेपर सेकंड में वो लर्निंग करते हैं, तो थर्ड में लर्निंग वाला टॉपिक है उनको रिलेट कर दिया। तो यू शुड नो होल, आप होल आपको पता होना चाहिए, फिर होल से बच्चों को पार्ट की तरफ ले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले मैं पार्ट पार्ट में पढ़ाती जाऊं। तो ये यूनिवर्सल कई फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर रिसर्च हुई पड़ी है, और पूरे यूनिवर्स ने माना है कि अगर कोई भी टीचर इस वे में अगर पढ़ाता है तो उसकी टीचिंग, नेचुरली बात है, इफेक्टिव टीचिंग होगी, लर्निंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो इन्हीं यूनिवर्सल फैक्ट्स को हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यू शुड नो अबाउट इट, राइट गाइस। अब लर्निंग क्या चीज होती है? लर्निंग, ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। लर्निंग हम बोलते हैं, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, राइट। लर्निंग का मतलब होता है, इट इज सेड टू बी इक्वलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। ओके, सपोज यू आर गोइंग टू टीच इन द क्लास, आप टीच कर रहे हो और बच्चा लर्निंग ले रहा है, राइट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग हो गया वो टॉपिक, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग हो गया। अगर बच्चे के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुआ उसके बिहेवियर में, अगर कोई चेंज नहीं आया, तो दिस इज नॉट कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग का मतलब ये होता है चेंज, देयर शुड बी अ चेंज, राइट। उन, जैसे अभी आप सपोज, आई एम टेकिंग द क्लासेस, यू नो, फ्रॉम लास्ट, हम 1.5 2 महीने से क्लास में आपकी ले रहा हूं। तो अभी आपने भी स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, और आपने देखा होगा कि आपके अंदर भी चेंज आते जा रहा है, आपको पता लगता जा रहा है, यस ये थ्योरम होती है, मैंने ऐसे पढ़ाना है, मैंने इस वे में पढ़ाना है। तो ये जो चेंज आती है, चेंज कैसे आई? लर्निंग के कारण आई। तो लर्निंग को यही बोलते हैं, लर्निंग मीन्स चेंज, मॉडिफिकेशंस ऑफ आपका बिहेवियर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग, राइट। फैक्टर्स थे कुछ लर्निंग को अफेक्ट करते थे, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। मैच्योरेशन फैक्टर, रेडीनेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशंस, मेमोरी, गोल, इंटेलिजेंस, राइट, कैपेसिटी, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, मेंटल हेल्थ, विल, मेंटल फटीग। साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, ड्रग्स, फिजिकल फटीग, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स, हैंडीकैप्स, डिसीज, गुड एंड फिजिकल हेल्थ एंड एज। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स लर्निंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, जिसके अंदर टास्क फैक्टर, मेथड, ये सारा आपका ना अच्छे से डिस्कस हो चुका है, राइट गाइस। तो हम ये लास्ट टॉपिक करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, राइट। अब टीचिंग का आपने, यू आर डन विद टीचिंग, क्या चीज होती है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। टीचिंग मीन्स सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज दैट इंड्यूस लर्निंग, ठीक है, बी ओ स्मिथ ने कहा था। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग भी आपने कर लिया, कि टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचिंग का मीन्स कॉजिंग टू लर्न है, टीचिंग का मीन्स रेडीनेस है, राइट। फिर आपने उसके प्रिंसिपल्स किए, प्रिंसिपल्स में जनरल प्रिंसिपल्स आ गए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आ गए, राइट। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन कौन से आ गए? मोटिवेशंस आ गए, सिंथेटिक आ गया, सजेस्टिव आ गया, कोऑपरेटिव आ गया, रिक्रिएशंस आ गया, ये सारे के सारे। फिर आपने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग किया। मैक्सिम ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल जो फैक्ट्स प्रूव्ड हैं, यानी कि आपकी टीचिंग, इट शुड गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इट शुड गो फ्रॉम डेफिनेट टू इंडेफिनेट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, राइट। फिर आपने लास्ट में लर्निंग किया, लर्निंग के फैक्टर्स किए। अब हम बात करते हैं, अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, राइट। शॉर्ट नोट में कई बार आपको आ जाता है। तो टीचिंग और लर्निंग में रिलेशनशिप क्या है? पहला आपने याद रखना है, टीचिंग मीन्स रिजल्ट इन लर्निंग, when there would be a teaching, there would be a learning. Teaching is a system of activities which results in learning, right? सेकंड क्या है? टीचिंग इज ए टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी, और लर्निंग क्या है? अचीवमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, राइट। टीचर टीच करवाता है, टास्क करवाता है, बच्चा एग्जाम्स के थ्रू रिजल्ट्स लेके आता है, वो रिजल्ट्स बताता है उसके टीचर ने कितनी मेहनत करवाई है, राइट। एवरी टीचर एक्ट्स एम्स एट प्रोड्यूसिंग लर्निंग, एवरी टीचिंग, हर टीचिंग का जो मेन एम होता है, याद रखना है, वो लर्निंग ही होता है। टीचिंग एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है, टीचर जानबूझ के पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करता है, इस वे में तैयार करता है ताकि उसके बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है, टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, राइट। और जो टीचिंग है, इसका ऑलवेज जो एंड प्रोडक्ट है वो लर्निंग ही होता है। लास्ट में बर्टन ने एक डेफिनेशन दे के रिलेशनशिप दोनों में क्या है वो उसको प्रूव कर दिया है। बर्टन ने क्या बोला है? बर्टन कहता है टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन,
You have to stimulate the child, causing to learn, right? Teaching is a guidance, teaching is a direction, teaching is encouragement of a learning. चार चीजों की बात की है, stimulation, guidance, directions and encouragement of a learning, right guys? So this is all about your relationship between teaching and learning, right guys? Thank you so much.